स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश। वित्त मंत्री चाउना मेन ने कहा, बजट में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर चिकित्सा, सबके लिए पेयजल, सड़क संचार, कृषि, आजीविका और जनजातीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण पर जोर। अरुणाचल प्रदेश में जन भागीदारी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुझाव के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गांधी दारांग, हाबुंग रायो और सुनील कीनो को अरुणाचल जन भागीदारी पुरस्कार से किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट का भी किया शुभारंभ। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठा राज्य के कई सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी का मुद्दा। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा, डॉक्टरों की भर्ती के अलावा उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रभावी पॉलिसी की जाएगी तैयार। अरुणाचल प्रदेश के वित्त मंत्री चाउना मेन ने आज राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में आगामी वित्त वर्ष के लिए 22,581 करोड़ रुपए के खर्च और सभी स्रोतों के 22,000 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह का अनुमान है। वित्त मंत्री का पदभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में 2.28% की तुलना में आगामी वित्त वर्ष में बजटीय घाटा कम होकर 2.19% रहने का अनुमान है। श्री मेन ने कहा है कि बजट में प्रशासन में उत्कृष्टता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि एवं और इससे संबद्ध क्षेत्रों के अलावा आजीविका गतिविधियों में क्रांतिकारी बदलाव, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सबके लिए पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, गुड कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन, पर्यटन को बढ़ावा और समाज के सभी वर्गों के समृद्ध संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत तिब्बत ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न जोन के एक गांव को पायलट बेसिस पर मॉडल विलेज में विकसित किया जाएगा और इसके लिए बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। And deliver the budget speech. Mr. Speaker, sir, I rise to present the budget estimate and annual financial statement for the year 2021-2022. We are passing through extraordinary times due to COVID-19 pandemic. This year, I have a difficult task to address the needs of aspirational Arunachal Pradesh, to set a tone for high growth while making sufficient resources available for the unfinished agenda of last year. The guidance and support of Government of India under the visionary Prime Minister Honorable Narendra Modi ji and dynamic leadership of our Honorable Chief Minister Shri Pema Khandu ji has ensured unprecedented pace in development of Arunachal Pradesh during last few years. I am confident that this pace is going to be accelerated in coming years as state would firmly establish itself as the bright star of the East. Development of border village will remain as an important priority of our government. Under the leadership of our Prime Minister, Honorable Prime Minister, the last few years have witnessed an unprecedented focus on border area infrastructure development, especially the road connectivity. We will continue to work for comprehensive development of border villages by providing them good road connectivity, power, water supply, health, and education. I am happy to announce a major initiative to develop 3 model villages on a pilot basis on the Indo-Tibet-China border areas. One is in the western part of this state. I propose to earmark a fund of ₹30 crore for the same. These model villages would serve as pilot projects which will be further expanded to cover many more such villages. The scheme would encompass innovative ways to dovetail socio-economic cultural needs of the village life while establishing the model villages.
I assure this August House that these model villages will be built in such a way that we will feel proud of them. We will rope in our border guarding forces in designing and implementing this scheme. अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री चाउना मेन ने संवाददाताओं के साथ बजट के मुख्य प्रावधानों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2021-22 शिक्षा के लिए समर्पित वर्ष होगा और इसको ध्यान में रखते हुए राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मिशन शिक्षा शुरू की जाएगी। 1000 करोड़ रुपए की इस योजना के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में 3 गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने के लिए 30 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए की मिशन हेल्थ योजना के लिए 160 करोड़ रुपए और आत्मनिर्भर कृषि योजना एवं आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। Educational institutes. This year we are launching Mission Shiksha with all encompassing strategy to improve the standard of education in the next 2 years. There will be 6 focus areas under Mission Shiksha, which include A. Infrastructure development of schools, B. Technology intervention through information and communication technology and digital initiative, C. Teachers training through diet and CRT, D. Early childhood care and education centers, E. Continuous performance evaluation of teachers and students, F. Rationalization of teachers posting through appropriate transfer policy. In order to materialize this mission Shiksha, I propose to earmark a total of rupees 200 crore over and above the normal allocation to the education department. We will converge all resources through normal plan, budget announcements, CSS and others to mobilize a sum of rupees 1,000 crore for the education department this year. Our government is committed to promote sporting culture and produce as many professional sports persons as possible from the state. Realizing the needs for adequate infrastructure to groom our aspiring sports person, I propose to allocate a total amount of rupees 12 crore for construction of outdoor stadium at Chimpu, Teju and Alo. The state would converge resources to create state-of-the-art sports infrastructure in nurturing the sports talent in Arunachal Pradesh. There are immense opportunities for entrepreneurship and employment in the field of popular adventure sports. To impart skills of adventure sports like paragliding, parasailing, and whitewater river rafting, etc., adventure sports training centers shall be set up in the public-private partnership mode, for which I propose to earmark. अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के दोरजी खांडू सभागार में आज जन भागीदारी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुझाव के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गांधी दारांग, हाबुंग रायो और सुनील कीनो को अरुणाचल जन भागीदारी पुरस्कार से सम्मानित किया। गांधी दारांग को सरकार और नीतियों में सुधार विषय पर, हाबुंग रायो को ग्रामीण अरुणाचल में बदलाव और सुनील कीनो को किसानों की आय बढ़ाने के विषय में सर्वश्रेष्ठ सुझाव के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। ईटानगर स्थित दोरजी खांडू कन्वेंशन हॉल में 4 मार्च की शाम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के दिव्यांगजनों का सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति शुरू होगा। आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्य की शिक्षा सचिव निहारिका राय ने बताया कि पहली बार क्षेत्रीय आधार पर आयोजित हो रहे 2 दिन के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। So we request all the media persons present here to kindly come tomorrow. We have to encourage the Divyanjan people because they are also integral part of our society.
Divyangjan society. Without them, society is not fulfilled. So this, I am very much happy that the Government of India has selected Arunachal Pradesh to conduct the regional Kala Shakti, Divya Kala Shakti cultural activities. So our Divyangjan people should take advantage of this organization. And in other time also, we are doing this such type of cultural program in the state level and district level also. अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक वांगलिंग लोवांगडोंग सहित कई सदस्यों ने सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाते हुए चिकित्सकों और स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए प्रभावी नीति बनाने और इसका कड़ाई से पालन करने की मांग की। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि खोंसा जिला अस्पताल सहित प्रदेश के सुदूर इलाकों के अस्पताल में ट्रांसफर किए गए चिकित्सकों ने अपना पदभार नहीं संभाला है और कई माननीय सदस्यों ने उनके ट्रांसफर को रोकने के संबंध में सिफारिश भी की है। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलों में ऐसी सिफारिशें न किया करें। Now, though we're appointing many specialist doctors just recently, there are many places, not only Khunsa but also other places in the state are acute shortage of specialist doctor. But I am trying to rationalize posting. But whenever our department posts some specialists or other doctors to Khunsa, doctors are reluctant to go there. Not only Khunsa but also in some other district hospital and some hospital. And we're in receipt of many letters, many notes from our colleagues, MLAs and others. So I request all the MLAs members here not to recommend for retention or posting of doctors. So if you do not write any such what is called written document, or will forsake doctors rationalizedly. But still we don't have, we're in shortage of more than 200 doctors in the state of Arunachal Pradesh. So we have to appoint more doctors just to give a good delivery. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय राजधानी के आरआर अस्पताल में कोविड का पहला टीका लगवाया। अब तक देश भर में 1,56,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 13,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए और 15,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 98 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का एक नया मामला सामने आया है और राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2 हो गई है। कल राज्य भर में कोविड जांच के लिए 523 सैंपल एकत्रित किए गए। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने आज स्पेशल हैंडलूम एंड टेक्सटाइल एक्सपो का उद्घाटन किया। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हस्तकरघा की विकास सोसाइटी द्वारा आयोजित 14 दिनों के इस एक्सपो में उन्नत तरीके से तैयार अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक परिधानों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य के हैंडलूम एंड टेक्सटाइल विभाग के सहायक निर्देशक डी रीबा ने बताया है कि एक्सपो में राज्य के 30 स्व सहायता समूहों और बुनकरों ने स्टॉल लगाया है। ये ओयान क्लस्टर को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, अपनी बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ दैट उन्होंने कुछ एक नई चीज़ स्टार्ट की है। एंड सिल्क बेसिकली एरी सिल्क पहले अरुणाचल में कहीं था ही नहीं, सब कुछ आसाम से हम लोग बाय करते थे। तो दिस इज़ अ गुड बिगनिंग। किस चीज़ की नेशनली और इंटरनेशनली जिस चीज़ की डिमांड होगी उस चीज़ को प्रोड्यूस करने का कोशिश कीजिए और बेसिकली बेबी स्टेप्स लेके आप प्रोस्पेरिटी तक पहुंच सकते हैं। ये एक्सपो बेसिकली 1 मार्च से लेकर 14 मार्च तक चलेगा। इसको अरुणाचल प्रदेश हैंडलूम डेवलपमेंट सोसाइटी ने उसको हम लोग ऑर्गेनाइज किए हुए हैं और इस एक्सपो के तहत विधायक तानिया सोकी ने हाल ही में दापोरिजो में आग दुर्घटना से प्रभावित
30 दुकानदारों और निजी परिसर के मालिकों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने लोगों से आग दुर्घटनाओं से बचाव के लिए घरों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की वायरिंग प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन से कराने की अपील की। श्री सोकी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में आग दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट रहा है और इसे ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए संबंधित विभागों और नागरिक संगठनों को मिलकर कदम उठाना चाहिए। दापोरिजो में फायर एक्सीडेंट जो है वर्षों से होते रह रहा है, तो इसके लिए मैं लास्ट टाइम हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी स्टेप्स उठाया और इसके लिए मैं फायर हाइड्रेंट भी इंस्टॉलेशन के लिए प्रपोज़ किया हूँ और नंबर ऑफ़ फायर टेंडर्स भी बढ़ाने के लिए प्रपोज़ किया हूँ और आदमी लोग। पापुम-पारे जिले के दौरपा गांव में आज मिथुन पशु के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। अरुणाचल मिथुन और याक संरक्षण मिशन के तहत राज्य पशुपालन विभाग और राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र मेडजिफेमा नागालैंड द्वारा आयोजित इस तकनीकी जागरूकता कार्यक्रम में स्थानीय मिथुन पालक किसानों ने हिस्सा लिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।